آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ اعجاز. ناظرین، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر آگ اور جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے. ایران نے واضح الفاظ میں پیغام دیا ہے کہ اختتام اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا رد عمل انتہائی سخت ہوگا. دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے تہران سمیت مختلف شہروں پر میزائل داغ دیے ہیں. ایرانی حکام کے مطابق یہ حملے صرف فوجی تنصیبات تک محدود نہیں رہے، جس کے بعد ایران نے فوری جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا اور اطلاعات کے مطابق ایران نے اسرائیل کے مختلف مقامات پر حملے کیے، جبکہ خلیجی خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے بھی نشانے پر آ گئے ہیں. ریاض، دبئی، بحرین، کویت، ابو ظہبی اور قطر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور ان کی میزائل انڈسٹری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا. سوال یہ ہے، کیا یہ محدود جھڑپ ہے یا خطہ ایک بڑی جنگ کی جانب بڑھ رہا ہے؟ اسی پر گفتگو کر لیتے ہیں. تجزیہ کار جاوید صدیقی صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. جاوید صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. جی بہت شکریہ. جاوید صاحب، اگر ایران کا دعویٰ درست ہے کہ اس نے 14 امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، تو کیا یہ محدود کارروائی ہے یا باقاعدہ طور پر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور امید کرتا ہوں کہ میری آواز آپ کے کانوں کو آ رہی ہوگی، کیونکہ میں ڈرائیو ہوں، رش کافی ہے. کچھ باتیں مجھے آپ کی سمجھ آئی اور کچھ نہیں آ رہی ہے، مگر یہ بات ضرور سمجھ میں آئی کہ آپ نے کہا کہ ایران نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ عدل اعلان کیا ہے اور یہی ایک مرد مجاہد کی پہچان ہونی چاہیے اور یہی ایک مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے کہ جب اس کے کوئی گھر میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے گھر کے اندر پانی آ جائے تو آپ سیلاب آ جائے تو آپ کو بند باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایران کا ایک بہترین اقدام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے اب تمام مسلمان ممالک کو اکٹھے ہونے کا، یہ وقت ہے ایک ساتھ ہونے کا، کیونکہ اگر آج بھی یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے تو ابھی نہیں اور کبھی نہیں. اور دیکھیں، ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ یہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپ کے کھلے دشمن ہیں. یہ آپ کو مختلف بہانوں سے جو ہے وہ نہ صرف مارتے ہیں بلکہ ان کا اصول ہی یہی ہوتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہی مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے. اب آپ دیکھیں ایران کے اوپر بھی اس نے اٹیک کیا اور پاکستان کے اوپر 2 دن سے 3 دن سے تقریباً افغانستان والا معاملہ چل رہا ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ جناب دیکھیں، یہ اس کے پیچھے صرف افغانستان نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے پوری لابی کام کر رہی ہے. دیکھیں، انڈیا ہمارا مخالف ہے اور حریف ہے ہمارا، اور وہ ہمیشہ ہم سے کبھی بھی لڑ نہیں سکتا، ہم سے جیت نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ ایک ایمانی طاقت ہے اور ہم جو ہے ہم نے نہ صرف ہمیشہ ہر موڑ پہ ہر محاذ پہ اس کے دانت کھٹے کیے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ افغانستان کو ہمارے خلاف ورگلایا اور ڈیفینیٹلی مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ممالک ہے، مگر شاید یہ وہ نمک حرام لوگ ہیں جنہوں نے 40 سال تک ہم نے اپنے ملک میں رکھا، اپنے شہروں اور گلیوں میں رکھا اور اس کے بعد بھی انہوں نے ہمارے سینے میں جو ہے وہ چراغ ہوگا اور آج بھی ہماری سالمیت کے اوپر حملے کر رہے ہیں. تو یہ بہت ایک افسوسناک عمل ہے اور حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس پر احسان کرو تم اس کے شر سے ڈرو. تو یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے اور بیسک بھی طور پہ یہ افغانستان نہ پدی کا شوربہ یہ صرف افغانستان نہیں ہے بلکہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بارم میچ ہو رہا ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے کیا کیا کہ پاکستان کو جو ہے وہ ڈائیورژن دیا، مطلب بات یہ ہے کہ اس طرف لے گیا اور پیچھے اس کے جو ہے انڈیا ہے. انڈیا آپ کو میں بتاؤں کہ کل رات موسم کی خرابی کی وجہ سے جو ہے انڈیا الحمدللہ حملہ نہیں کر پایا، مگر جو 90% ریسورسز تھے، جو ذرائع تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ انڈیا جو ہے سندور 2 آپریشن جو ہے وہ شروع کرنے والا تھا. تو یہ بڑا کرم ہے اور میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ آج ہمارا میڈیا اور عوام اس کو پاک فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فوجی تو ہر محاذ پہ لڑ رہے ہیں، ڈٹے ہوئے اپنی جگہ پہ، مگر آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے چینلوں میں یہ اس طرح کے ساس اور بہو کے معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. کبھی ڈاکٹر نبیہ خان کا ڈسکس ہوتا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. تو میرے بھائی یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا. اس لیے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیر از نو صفا، دیر
there is no salar, there is no support, there is no salar, only one Safa and one salar, and that is Pakistan Army, proud to be army और proud to be forces. मैं अपनी तरफ से, अपनी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, अपने पूरे पाकिस्तान के आवाम की तरफ से अपने आर्मी चीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये कहता हूँ कि जनरल साहब कोरोना कम जरूरत पड़ी तो हम देंगे लोगों को तेज चिरागों में डालने के लिए, तो इंशाल्लाह हम तो आप के शाना बशाना है। यकीन करें कि कौन भी ये लोग नजर लिखा है कि इन काफिरों को कभी भी ये हम पे गालिब नहीं हो सकते और इंशाल्लाह ये हम पे कभी गालिब नहीं होंगे। अच्छा जावेद साहब, क्या ईरान के पास इतनी सलाहियत है कि वो अमरीकी अड्डों को मुसलसल निशाना बना सके? देखिए बात ये है कि ईरान के ऊपर इतनी एटॉमिक पाबंदी के साथ और पाबंदियां लगाने के बावजूद भी ईरान ने जिस तरह जंग का आगाज किया है, मैं फिर इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखिए बात ये होती है जंग है दो चीजों से लड़ी जाती है, टेक्नोलॉजी यकीनन एक अपनी जगह अहमियत की हामिल है, मगर जंगे हौसलों से लड़ी जाती है, जंगे जज्बों से लड़ी जाती है, वहाँ की आवाम है, वहाँ की फौज एक है। तो बात ये है कि जब और सबसे बड़ी बात जब नारा अल्लाह अकबर का लगता है तो फिर कुछ नहीं नजर आता, फिर अल्लाह अकबर का नारा लग के पूरी सदाएं जो है वो गूंज जाती है। तो ये मैं ईरान की बहादुरी को दाद देता हूँ और यही चीज पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर बात ये है कि हमारे कुछ मुसलमान ममालिक जब मुसलमान होते हैं भी कहते तो जरूर है कि पाकिस्तान हमारे अलाई है। अभी मैं आपको 2 दिन पहले की बात करूँ तो आप अगर देखें तो ये देखें कि जनाब इसने मोदी ने ये कहा कि ये हमारे अलाइंस है अफगानिस्तान को। सर अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं, खलीजी ममालिक ने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं। जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक और शर्म की नाक की बात है। ये हमेशा करते यही है कि चंद करोड़ डॉलर दे के ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं, मगर बात ये है कि तारीख गवाह है कि मीर जाफर और मीर सादिक हमेशा इनका मुंह काला हुआ है और यकीन करें इनके साथ भी इंशाअल्लाह यही होगा। पाकिस्तान करने की नाम पे बुनियाद पे रखा गया और इंशाअल्लाह वो लोग जो गद्दारी करते हैं अल्लाह ने चाहा तो नामो निशान इनका जमीन से मिट जाएगा। अच्छा जावेद साहब, इजराइल के पास ऐसा दिफाई निज़ाम मौजूद है कि अगर ईरान कोई बड़े पैमाने के अटैक करता है तो इजराइल उसको रोक सके? नहीं देखिए डायरेक्टली तो इसराइली किसी चीज को हिट नहीं कर सकता है। हमारे जो दोस्तों ने हमारे मुसलमान भाइयों के ममालिक में जो अड्डे दिए हुए उसके ऊपर ही वो बेसिकली तो बात करता है। इस वक्त भी 2 बड़े बेड़े जो है वो बेरिया क्यूनूस और दूसरी जगह एक और जगह मुझे याद नहीं है मौजूद है, ठीक है। ये ट्रम्प के अपने स्टेटमेंट है। बात सिर्फ इतनी है कि आज जैसे अभी थोड़ी देर पहले सऊदी अरब के उसमें बयान आया सऊदी अरब की तरफ से कि जनाब हम अपना अड्डा नहीं देंगे, इसी तरह पाकिस्तान ने भी ये कहा कि हम अपना अड्डा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं देंगे। तो ये बात यूनाइटेड करने की है। तो इंशाअल्लाह जिस दिन ये मुसलमान यूनाइटेड हो गए तो इन यहूदियों को जो सफारती मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा जावेद साहब, अमेरिका के खलीज में दर्जनों फौजी अड्डे मौजूद हैं खलीजी रियासत में। क्या ये अड्डे ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए आसान हदफ बन सकते हैं? आपको लगता है ईरान जो है इन फौजी अड्डों को मुसलसल निशाना बनाता रहेगा, रुकेगा नहीं? नहीं देखिए यही तो उसकी ब्रेवनेस है, यही तो हम सलूट करते हैं उसको कि इतनी पाबंदियां होने के बावजूद भी इसने दुनिया को हैरान कर दिया। उसकी वजह यह है कि उनके लिए ईरान के अंदर ईमानी ताकत है, उनके अंदर एक जहाँ वो जलाल है जो मुसलमानों के हमेशा से थोड़ा इम्तियाज रही है। तो बात यह है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो यकीनन ईरान नहीं अभी की भी कुछ देर पहले की न्यूज़ के कुछ बॉर्डरों पे मुख्तलिफ 16 या 17 बॉर्डर पे मुख्तलिफ ममालिक के उसने जो है वो हमले किए। तो यकीनन हमला करना एक मतलब ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ईरान को भी पता है कि इसके जवाब में वो किस 3 चीजों की मज़ाहमत कर सकता है, मगर बात यह है कि उड़बान के मर गया डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। और जिनकी उम्मीदें जिसकी नजरें जो है वो अल्लाह की जात के ऊपर हो वो तो रातों खेज मौजों से घबराए नहीं करते। तो सलूट है इमरान, सलूट है अपना ईरान को और सलूट करता हूँ मैं जनरल मुनीर साहब को कि इंशाअल्लाह इस दफा बने वही पाकिस्तान के अवाम भी साथ है और अल्लाह ने चाहा तो इस दफा जो यहूदियों को नेस्तो नाबूद करेंगे। जावेद साहब, अगर आबना हुर्मज़ बंद होती है तो अमरीकी बहरिया या अमरीकी फ़ौज उसे फौरी तौर पर खुलवाने की सलाहियत रखती है? माफ कीजिएगा आवाज ड्रॉप हुई थी। मैं आबना हुर्मज़ के हवाले से सवाल कर रहा था जिसको ईरान ने बंद करने का दावा भी कर दिया। अगर ये आबना हुर्मज़ बंद होती है तो अमरीकी बहरिया या अमरीकी फ़ौज इसे फौरी तौर पर खुलवाने की सलाहियत रखता है? नहीं देखिए अगर
रास्ते बंद हो गए तो अमेरिका क्या है, अमेरिका इज नथिंग, ठीक है ना। बात सिर्फ ये है उसने अमेरिका ने एक ग्रेटर इसराइल और ग्रेटर जो है ना वो अमेरिका वाला सिलसिला शुरू किया है। बात ये कि अगर हमारे मुसलमान दोस्तों के यूनिटी हो जाए तो अमेरिका का क्या अच्छे भी है कि हम नहीं कर सकते। तो बात ये है कि अमेरिका क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ तो जरूर खेल रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ तो जरूर लड़ रहा है, मगर यकीन करें कि उसके अंदर जज्बा ईमानी नहीं है। और जंग जो है वो जज्बा ईमानी से जीती जा सकती है, हौसलों के साथ जीती जा सकती है। अच्छा जावेद साहब, ये जो बहरान है ये नेटो ममालिक को भी बरह रास्त मुतासिर कर सकता है? जी देखिए, बात ये है कि ये तो वर्ल्ड वाइड जंग बेसिकली तौर पर इस वक्त दो मुल्कों की नहीं हो रही है, बल्कि इस वक्त जंग जो है वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है। तो लिहाजा जब भी दुनिया के अंदर जंगों का सिलसिला शुरू होता है तो वहाँ पे ना सिर्फ मुल्कों के लिए परेशानी के असबाब पैदा हो जाते हैं बल्कि कारोबार भी उनका ठप हो जाता है। सही। अच्छा जावेद साहब, आपने हुर्मस की बंदिश से जो है वो तेल सप्लाई पर फौरी तौर पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? दोबारा कहिएगा। जावेद साहब, आबनाए हुर्मस की बंदिश से आलमी तेल सप्लाई पर फौरी और तवीलुल मुद्दती क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि डेफिनेटली हर चीज सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर होती है, मगर अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो तेल की भी कीमतें बढ़ेंगी और थोड़े से सिचुएशन में अफरा तफरी होगी। सही। अच्छा, डिमांड पे है ना, तो हर चीज सप्लाई के ऊपर अगर मेरी डिमांड ज्यादा है और मुझे सप्लाई नहीं मिल रही है तो ऑटोमेटिक चीजों की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा जावेद साहब, क्या हिजबुल्ला और दीगर प्रॉक्सी फोर्सेस जो हैं वो इस जंग को मल्टी फ्रंट वॉर में बदल सकती हैं? हिजबुल्ला आपको लगता है कि ईरान का साथ देगी, या फिर इससे पहले जब ईरान और इजराइल तनाज़ा हुआ था, अमेरिका की जो है वो आशीर्वाद से हुआ था, तो उस टाइम पे हिजबुल्ला ने अपना रास्ते अलग इख्तियार कर लिया, तो इस बार क्या लगता है हिजबुल्ला जो है इस जंग में शामिल होगी? जी, असूली तौर पर तो हिजबुल्लाह को इस जंग में शामिल होना चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर हिजबुल्लाह ये समझता है कि जी मैं खामोश रह के साइलेंट रह के मेरी बारी नहीं आएगी, तो याद रखें आज ईरान की बारी है, कल पाकिस्तान की बारी है, और उसके बाद सबसे बड़ा इस वक्त जिनका हाथ टारगेट है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है। तो हिजबुल्लाह को चाहिए कि वो फुल फ्लेज में आके खड़े होके जो पाकिस्तान का अपना साथ दे मुस्लिम ममालिक का, और मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो एक अपनी नेटो बनाए। उसकी वजह यह है कि इन अंग्रेजों की, क्योंकि ये यहूद व नसारा है, जब कुरान ने कह दिया कि ये हमारे नहीं है तो हम और आप कैसे कह सकते हैं ये हमारे हैं। अच्छा जावेद साहब, खलीजी ममालिक पर जो अमरीकी अड्डे कायम है उस पर हमले से हमारे अपने जो इस्लामी ब्रादर ममालिक हैं उनका ही नुकसान होना है, तो क्यों ना उन पर जो है वो रॉकेट दागने या मिसाइल दागने से बेहतर था कि इजराइल पर बरह रास्त हमला किया जाता? देखिए, मैं आपको एक चीज और थोड़ा सा डायमेंशन बताता चलूं। बेसिकली तौर पे हर मिसाइल की एक रेंज होती है, हर ममालिक के पास जो मिसाइल है उसकी रेंज है, ठीक है ना। तो अनफॉर्चुनेटली इजराइल के जो है बहुत सारे डोमेन जो है वो हिट नहीं हो पाते हैं। तो बात ये है कि कम से कम उस जगह को तो आपने हिट करें जहाँ पे जो चीजें जो है उनके रसद के लिए इस्तेमाल हो रही हो। तो बेसिकली तौर पर ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा एक्ट है। कम से कम जहाँ से जो सप्लाई चेन टूटती है तो ऑटोमेटिक चीजें नेगेटिव मतलब ईरान के लिए पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी और इन लोगों के लिए नेगेटिव। अच्छा, इस जंग से खित्ते पे क्या असरात पड़ेंगे, और आप समझते हैं ये जो जंग है ये महदूद फ़ज़ाई जंग ही रहेगी या मुकम्मल तौर पर इलाक़ाई जंग में भी तब्दील हो सकती है? देखिए, अल्लाह करे कि ये महदूदी जंग रहे। उसकी वजह है कि जंग चाहे किसी के साथ भी हो, जंग अच्छी अलामत नहीं है, ठीक है ना। मगर जो इस वक्त दायराकार बढ़ रहा है, जो यहूदियों ने मिलकर एक अपनी चौधराहट कायम की है, इसको तोड़ने के लिए यही एक हल है कि मुसलमान अपनी नेटो बनाए, और ना सिर्फ नेटो बनाए बल्कि अगर किसी एक ममालिक पे हमला हो तो वो पाकिस्तान, वो पूरे दुनिया की नेटो जो मुसलमान ममालिक की नेटो है, ये एज्यूम करे कि जनाब ये उस मुल्क के ऊपर हमला नहीं हुआ, ये ईरान के ऊपर हमला नहीं हुआ, ये सऊदीया पे हमला नहीं हुआ, ये पाकिस्तान पे हमला नहीं हुआ, बल्कि ये पूरी दुनिया के ममालिक के ऊपर हमला हुआ है। और अगर ये चीज समझेंगे तो यकीन करें इसी में मुसलमानों की बका है। अच्छा जावेद साहब, अमेरिका की गुज़िश्ता 2 दिहाइयों की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी को अगर हम देखें, क्या वाशिंगटन अब तवील जंग अफोर्ड कर सकता है? देखिए, बात यह है कि वाशिंगटन इसलिए कर सकता है, उसकी वजह यह है कि उनके पास एक हमसे जो है वसाइल में कहीं ज्यादा आगे है, जो सच बात हकीकत यही है, ठीक है। तो बात यह है कि वो क्योंकि उसके पास हर चीज की रिसोर्सेज हैं, पैसे ज्यादा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो यकीनन वो हमसे ज्यादा कर सकता है। मगर अगर हम इसको जो है वो मतलब तरीके से अगर लेके चलें तो इंशाल्लाह अमेरिका और इसराइल घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगा।
अच्छा जावेद साहब, पाकिस्तान की सरहद तवील सरहद जो है वो ईरान के साथ मिली हुई है, तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क क्या हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली सिक्योरिटी रिस्क ये है कि अगर वो वहाँ पे भी कुछ चीजें शरारत करते हैं तो इसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। तो आप समझते हैं कि इस जंग के जावेद साहब, इस जंग के असरात बलूचिस्तान या पाकिस्तान के सरहदी इलाकों तक भी पहुंच सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। उसकी वजह से BLA की मिसाल ले लें, आप रॉक एजेंट की मिसाल ले लें, काम तो ऑलरेडी से पहले से कर रहे हैं ना। उन्होंने हमारे चंद खरीद लोगों को खरीदा हुआ तो है ना, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। अब कुछ नहीं कर सकते तो बम ब्लास्ट की तरफ चले जाते हैं। सही। तो ये हमारा रवैया है। अच्छा जावेद साहब, पाकिस्तान इस वक्त कोई किसी किस्म की सिफारती सालसी का किरदार अदा कर सकता है, आपको क्या लगता है, या फिर पाकिस्तान जो है वो गैर जानिबदार ही रहेगा इस वक्त इजराइल और ईरान और अमेरिका की जंग में? नहीं जी, पाकिस्तान को बिल्कुल गैर जानिबदार नहीं होना चाहिए और ना इंशाल्लाह वो रहेगा। उसकी वजह ये है कि अगर आज पाकिस्तान गैर जानिबदार है तो ये पहले ईरान को बर्बाद करेंगे और नेक्स्ट हदफ बेसिकली तौर पर उसका हदफ ईरान नहीं है। इस चीज को कीप इन माइंड, इसका हदफ पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक ममालिक है और पाकिस्तान जो है इस वक्त अगर देखा जाए और अच्छी बात की जाए तो चौधरी है इस खित्ते का, मुसलमान ममालिक का, और मुसलमान ममालिक जो है इसके ऊपर रिलाई करते हैं। आप समझे मेरी बात? तो बात यह है कि पाकिस्तान बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए जी। तंग आमद जंग आमद, क्योंकि गिरते हैं सवार मैदान जंग में वो तुफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चलता हो। अच्छा जावेद साहब, पाकिस्तान के गिर्द भी जो है वो जंग का ख़तरा मंडला रहा है। एक जानिब पाक अफगान बॉर्डर पे अफगानिस्तान के तालिबान रजीम से मुकाबला चल रहा है, उनसे दो बदू फाइट चल रही है। दूसरी जानिब जो है वो इंडिया भी जो है इस वक्त पाकिस्तान को मसरूफ़ रखता हुआ अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी हमला करने के दर पे। आपको क्या लगता है दोनों महाजों पे बैक वक्त हमारी फ़ौज किस तरीके से परफॉर्म करेगी? देखिए, यही तो सबसे बड़ी कमाल की बात है ना कि निजी बनाना और जज्बा ईमानी के साथ। और यहाँ पे तो सिर्फ दो महाज का नाम लिया, तीसरा करवा देता हूँ जो कि एक पहला अफगानिस्तान हो गया, जैसे मैंने शुरू में पहले ही कहा कि वो उसको इसके साथ एंगेज करना चाह रहे थे। सेकंड वहाँ पे मैंने आपसे बात की इंडिया के हवाले से, और थर्ड वन जो है वो इसराइल, और इसराइल के पीछे है अमेरिका। तो ये पूरी एक लॉबी है जो इसको मिलकर करना चाहती है। आप क्या समझते हैं कि ट्रम्प साहब जो है हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब की तारीफ करते हैं, लेकिन वो तारीफ तो करते हैं मगर वो कहते हैं ना कि मुंह में जो है वो मतलब मुंह में कुछ और पीठ पीछे कुछ। ठीक है जावेद सिद्दीकी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, अपना नुक्ता नज़र बयान किया। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता की ये कशीदगी अगर मज़ीद बढ़ी तो उसके असरात से ईरान, इजराइल या अमरीका तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। अपना बहुत ख्याल, अल्लाह ने के बाद।